क्लियर नहीं आ रहा है, लेंस पे बहुत ब्लर्ड आ रहा है. स्टार्ट कर दूं? Hello students, hello everyone. I hope you all are good. First confirm whether I am audible or not. And am I clearly visible? Tell me that. Hi Rohit. Shall we start? Can you see me and can you hear me? Yes, Ananya. All right. So I'm back as I already promised you, and this time we will be taking up a very, very important topic. And what is that? Reading comprehension. I'm not clearly visible? Yes, it's blurred. Okay, that too, I was thinking the same. Let me figure this out. Wait. मैंने बोला था बच्चे के blurred. Please wait, hang on, we are fixing it. Is this fine? Is this better now? Thank you. Yes? Is this better? Yeah. चलो ठीक है, स्टार्ट करें. फाइन. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हम बात कर रहे हैं. एंड सी, दिस इज वन सच एरिया that is there in every competitive exam. You in fact cannot think of any competitive exam that has of course English which will not have reading comprehension. Such is the importance of passages. Ever wondered why is that so? It is because I believe reading and comprehending is a benchmark of literacy. Don't you think so? और मतलब ये एक स्टैंडर्ड बन गया है कि मतलब whenever you read any write up, any text, any prose, whatever, you should be able to comprehend it. And that is the reason why, especially exams like, for IIMs, CAT exam or IPMAT, they are very much fond of reading comprehension. The reason being that as future managers, you will be reading so much. Don't you think so? You'll have to go through a lot of text and you'll have to interpret things properly. So this is a must question in your exam. This has a good enough weightage. So let's begin with the basics of reading comprehension. So before I talk about the basics, I would just like to tell you one very important thing. When I speak of getting started, it actually means that you have to be a widely read person. See, there is no substitute for reading. There are no shortcuts. ठीक है, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतने बेटर आप होते जाओगे. At least try to pick up one newspaper, a nice English daily, all right, and go through the editorials, not just the news stories, editorials. Occasionally on and off read some essays, articles, blogs, whatever comes your way. और जो अच्छा लगता है ना उससे पढ़ना स्टार्ट करो, right? Don't pick up heavy stuff just because somebody has recommended it to you or just because you've heard raving reviews about it. ठीक है ना? So it has to be something like, of your interest. Start reading. Because when you read, that is when you actually understand sentence structures, right? You become more fluent at it, you become faster at it, right? So सबसे बड़ा problem ये होता है कि majority of the students actually are not widely read because they've never pursued reading as a hobby. And especially such kind of reading where you get heavy stuff at times, you will have to be very adept at reading. So please keep on honing and brushing up your reading skills. तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी?
देखिए पैसेज सॉल्विंग जो आपको आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। सी गेटिंग स्टार्टेड में तो मैंने आपको बता दिया रीड, ठीक है। When I say passage solving, the two important things, the first is reading the passage and the second is solving questions, right? Now very interestingly एक चीज है, if you don't do this right, there's absolutely no chance that you will be able to solve the questions correctly. That's given. अगर आप रीड अच्छे से नहीं करते हो, एंड यू नो टू मेनी ऑफ यू यू माइट बी वंडरिंग कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि दैट्स नो बिग डील, बट नहीं, आप देखोगे रीड करने के सही जो जो अप्रोच है वो मैं आज आपको बताने वाली हूं। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स डोंट रियली अंडरस्टैंड दैट दे आर मिस इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट, दे आर ड्रॉइंग रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस, fine, they are assuming so many things while they are reading, and that is the reason why they have a very skewed understanding of the text. तो कोशिश ये करना है हमको कि हम बिल्कुल सही लाइट में पढ़े, सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़े। अब जब तुम्हारा ये पार्ट अच्छा हो जाता है ना, तो सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बिकम्स इजियर। बट इसके अलावा भी एक और चैलेंज, आई टेल यू व्हाट प्रिसाइसली, इसके अलावा भी स्टिल इट इज नॉट गिवन और गारंटीड कि तुम्हारे सही आंसर ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत वेरी करती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्लास, एंड अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है और एलिमिनेशन टेक्निक्स होती है, जो प्रैक्टिस से आप प्रिसाइसली अपने आंसर जिससे सही कर पाओगे। तो फिलहाल हम बिट बाय बिट ही बढ़ेंगे आगे। आज इस शॉर्ट स्पैन ऑफ ड्यूरेशन में हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम रीडिंग पे वर्क करें थोड़ा सा। आपको रीड कैसे करना चाहिए, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट प्राइमरीली। सो हियर वी गो। दिस is a guide to reading like a pro, and I have put up these 5 very simple steps. Class, trust me, if you follow these 5 simple steps, you will be able to read impeccably. But हाँ, जैसा मैंने आपसे बोला, रीडिंग से एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज का एक एडवांस सेंस होना जरूरी है, और लैंग्वेज का सेंस काफी हद तक वोकैब्युलरी से और ग्रामर से डेवलप होता है, ठीक है। सो दैट होमवर्क, दैट ग्राउंड वर्क हैज टू बी डन बाय यू, एंड देन assuming that that's all in place, let's proceed and we will discuss all these points one after the other. चलो ठीक है, तो पहली चीज करते हैं, and then yeah, of course after this we will be solving some amazing passages, ठीक है ना? All right, the first one, identify the central idea. देखिए, no matter what you read, no matter when you read, where you read, whatever, जब भी तुम पढ़ते हो, जो भी तुम पढ़ते हो, अगर if I take away that text from you and I ask you, बताओ क्या पढ़ा तुमने, 2 लाइन में बता दो, अगर तुम वो भी नहीं बता पाए तो यानी कि आपने कोई रीडिंग नहीं करी है, यानी कि there's absolutely no quality in your reading. कॉम्प्रिहेंशन तो हुआ ही नहीं, दैट्स बीन अ वेरी मैकेनिकल एंड अ वेरी सुपरफिशियल प्रोसेस, ठीक है। तो आपको सेंट्रल आइडिया तो बताना आना चाहिए। दिस इज वेरी मच लाइक अ मिनी समरी, a very short summary, एक तरह से मैं आपसे बोल रही हूँ। We all have done summary writing and pressy writing in school. Anyway, to make it simple, I'll say, even if you're reading an editorial or a chapter of a novel, right, or some blog or some passage from your book, right, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, what is that primarily about? I'll give you one very basic example. How can you figure out the central idea? जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमको कि भाई ये चीज किस बारे में है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। मान लीजिए आजकल न्यूज में इजराइल एंड पैलेस्टाइन बहुत बने हुए हैं, सो मे बी इट्स अबाउट यू नो इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो यू आइडेंटिफाइड द टॉपिक, दैट इज फाइन, आपको समझ में आ गया इसके बारे में है। लेकिन what exactly about that? When I ask students the main idea, I've read the entire passage and students simply say, madam, ये conflict, Israel or Palestine. What attribute, what feature, what aspect of it has been discussed in the passage? सबसे पहले तो आप keywords पकड़ते हैं, जो keywords mostly जो nouns होंगे कुछ ना कुछ, जैसे कि Israel, Palestine की conflict, इस
ये बार बार रिपीट होगा पैसेज में, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद में इसके बारे में क्या बोला गया? Are they telling you about the turbulent history that these two nations have shared since time immemorial? Is it telling you about a historical timeline? Is that so? Or maybe it could tell you about what can be the repercussions of this attack by Hamas, right? Or it is telling you about the different stakeholders involved in this conflict and how can this actually potentially escalate into a full-fledged third world war with US backing Israel, right? And other Arab nations possibly backing पैलेस्टाइन। तो ये क्या बता रहा है उसके बारे में, या फिर ये सिंपली ह्यूमन राइट्स के एंगल से सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है कि व्हाट आर द एट्रोसिटीज दैट आर बीइंग इन्फ्लिक्टेड। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि इस चीज के बारे में क्या बात हो रही। एंड इन अदर वर्ड्स आई सिंपली से कि पैसेज का मतलब समझ लो ये स्केलेटन की तरह होता है, मेन आइडिया उसके ढांचे की तरह होता है। सो लीव असाइड द फ्लैश एंड जस्ट फोकस ऑन द बोन्स, जस्ट लुक एट द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर की क्या क्या बात हो रही। ठीक है, सो मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज डिस्टिल की आइडियाज। जब आप की आइडियाज मतलब इंपॉर्टेंट आइडियाज, देखिए पैसेज का सेंट्रल तो मेन आइडिया होता है, बट इट्स दैट सेंट्रल थीम अराउंड विच द एंटायर पैसेज इज बिल्ड। बट और जो भी बातें हो रही हैं पैसेज में वो मेन आइडिया को ही सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी होगी। सो ऑल दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू डिस्टिल इट। There are going to be explanations, there will be examples, there will be maybe comparisons or analogies. तुमको क्या करना है, उस सबको काट छाट करके मुद्दे की बात उठानी है। ये कंडेंसेशन, ये डिस्टिलेशन ऑफ आइडियाज बहुत जरूरी है। यू हैव टू रिमूव द शेफ फ्रॉम द व्हीट एंड समझना है कि इस पूरे पैराग्राफ में मेन बात क्या हो रही है। यहां तक सिचुएशन क्लियर है? चलो ठीक है। Now let's have a look at this. Look for the author's viewpoints, judgments and opinions. अब यहां पे इट्स नॉट इनफ कि आपने पैसेज को मैकेनिकली पढ़ लिया और आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए। इट्स मच मोर देन दैट। आपको थोड़ा सा ऑथर का इंक्लिनेशन भी पकड़ना होगा। आपको वो सारे एरियाज मार्क करने होंगे जहां पे राइटर ने अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करी है, इफ एट ऑल ही हैज शेयर्ड इट। इफ ही हैज नॉट शेयर्ड, इट्स एन ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग। वहां पे उसने अपनी पर्सनल ओपिनियन कोई शेयर नहीं करी, कोई जजमेंट पास नहीं किया। मे बी ही हैज बीन वेरी डिटैच्ड, alright, or maybe he is not involved and he's being very objective and he's calling a spade or he's simply mentioned facts. हो सकता है उसने अपनी ओपिनियन नहीं बताई है, बस फैक्ट्स बताई है, सिचुएशन को डिस्क्राइब किया। बट अक्सर ऑथर एक अपनी ओपिनियन शेयर करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मान लीजिए यही अगर मेरा पैसेज का थीम है तो ऑथर क्या कर रहा है, व्हाट डज द ऑथर हैव टू से? Is he criticizing this conflict and he feels that this can be very detrimental for us, for the entire world, and the major powers should actually come on the forefront to tackle this situation, right, to avert any escalation of this conflict? Is he saying that, या फिर he's siding with either of the parties involved? या तो वो पैलेस्टाइन का फेवर ले रहा है, या फिर वो इजराइल का फेवर ले रहा है, या फिर वो किसी का फेवर नहीं ले रहा। वो कर क्या रहा है पैसेज में, यहाँ पे उसकी ओपिनियन क्या है? ये क्यों इतना जरूरी होता है? बताओ ये क्यों इतना जरूरी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टोन आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा आपको, और ये प्राइमरी पर्पस में भी आपको हेल्प करेगा। This will even tell you about the primary purpose of the passage. Is this much clear? तो जब तक क्लियर नहीं है ना आपको ऑथर का व्यू पॉइंट और उसका स्टैंड, उसका पीओवी, तब तक you actually have not understood the thing really well, right? Okay. And finally, read ideas, not just words. This might look a little rhetorical, but trust me, this holds a lot of value.
बच्चे अक्सर ऑब्सेस हो जाते हैं वर्ड से, एक एक वर्ड पढ़ रहे होते हैं और एक भी वर्ड नहीं समझ में आएगा तो हिल जाते हैं। रिलैक्स, heavens won't fall. As long as you understand the main idea and the important ideas, even if you don't understand one sentence or a bunch of sentences for that matter, you still are getting the aerial view of the passage. You still are there in the game. आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, कुछ ना कुछ तो आंसर निकाल ही लोगे यार, तो इतना टेंशन मत लिया करो, ठीक है? पढ़ते जाओ चीजों को, सिर्फ वर्ड्स पे फोकस ना करके ये देखो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे, उसका आइडिया क्या है? आपको इतना ही समझ में आ गया वो क्रिटिसाइज कर रहा है, अब यहाँ पे उसने कुछ भारी भारी एडजेक्टिव्स यूज कर लिए, सारे एडजेक्टिव्स आपको पता नहीं, नॉट एन इश्यू, इतना तो समझ में आ गया ना कि ऑथर कुछ नेगेटिव बोल रहा है। आइडिया पकड़ने की कोशिश करो, दैट इज द क्रक्स, all right? That is the essence. Don't be fixated with words all the time. Definitely it's an idealistic scenario where we understand each and every word. All right, Shan, as far as your query is concerned, that is specifically about vocabulary. तो मैं आपसे बस ये बात बोलूंगी कि vocab पे मेरी पहली ही क्लास थी, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी इंसाइट्स मिल जाएंगी vocab के बारे में, है ना? Because this session is exclusively about रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो मैं इसी से रिलेटेड जो भी अभी क्वेरीज है उनको हैंडल कर पाऊंगी। बट शान, आई टेल यू वन थिंग, रीडिंग से भी आप बहुत सारा सीख सकते हो, ठीक है ना? रीडिंग के थ्रू तुम बहुत अच्छे से वोकैब्युलरी डेवलप कर सकते हो, दैट्स आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन रीडिंग बिकॉज दैट्स द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ वोकैब डेवलपमेंट। ऑलराइट, we now come to the next one. No misinterpretation, no overthinking. Now there's one thing that we often misinterpret a lot. What do I mean? बच्चा रीड करता, मैडम मैं रोज इतना पढ़ रही हूँ, मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव नहीं हो रहा, राइट? सम ऑफ देम डोंट इवन रियलाइज दैट देयर कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट इन प्लेस। दे फील हम बहुत सही समझते हैं। इट्स जस्ट दैट व्हेन आई सिट डाउन विद देम ड्यूरिंग द मेंटरिंग सेशन, आई गिव देम अ टेक्स्ट ऐसे, चलो मेरे सामने पढ़ो, मेरे को बताओ क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, तब समझ में आता है। That's quite a stark realization for many students at that juncture that they don't really understand well. They misinterpret things. अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप? Regular passage solving, regular reading, checking up with things, right? And of course mentoring. इसलिए मैं कहती हूँ classes बहुत important है, इसी से आपका comprehension improve होता है, and that's a gradual process. This won't happen overnight. तो मिस इंटरप्रिटेशन से मेरा मतलब ये है, आप कई बार खुद से कुछ चीजें सोचने लग जाते हो, जो मैं ओवर थिंकिंग में भी आपसे कह रही हूँ। पहली बात तो यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स इन एंटायरिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कश्मीर इज ब्यूटिफुल बट इट इज सर्टेनली नॉट द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। कश्मीर इज ब्यूटिफुल बट इज सर्टेनली नॉट द बेस्ट प्लेस टू लिव इन, तो आपने इंटरप्रेट कर लिया कि भाई दिस इज द वर्स्ट प्लेस। नो, दैट्स रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आपने इंटरप्रेट कर लिया कि ओके फाइन, वहां पे हाँ आप रिलेट करने लग जाते हो, हाँ टेररिज्म का प्रॉब्लम था, ओके दैट्स व्हाई। नहीं, नो आउटसाइड इंफॉर्मेशन प्लीज। व्हेन आई से ओवर थिंकिंग, आप जो वेरियस चीजें बाहर से ले आते हो ना और सोचने लग जाते हो, दैट इज द रियल डीमन हियर, ठीक है? नो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्लीज। जितना पैसेज में दिया है वही हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। डोंट ट्राई टू ब्रिंग इन एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट? यहां पे मैं सिर्फ रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूं, ठीक है? इसके अलावा नो बायस एंड नो assumptions. Don't assume things. कई बार स्टूडेंट्स कुछ चीजें लेके चलते हैं, अज्यूम कर रहे होते हैं। मान लीजिए द पैसेज इज ऑन स्मोकिंग, अब हम तो सबको पता है स्मोकिंग बहुत खराब बात है, बट मे बी द ऑथर सेज दैट इट्स ओके, इट्स नॉट अ सिन, एंड ओके दैट इज अबाउट यू नो योर फ्रीडम। इफ आई वांट टू स्मोक, मेरे फेफड़े खराब होंगे भाई, दुनिया का क्या जा रहा है?
तो दैट्स ऑथर्स व्यू पॉइंट. यू मे अग्री, यू मे डिसअग्री, डज नॉट मैटर. आपकी सोच मैटर नहीं करती है, आपको ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, उसी के हिसाब से आंसर निकालना है. ठीक है, इज दिस मच क्लियर? और चीजों को जितना बोला गया है उतना ही समझना है, राइट? ओवर थिंकिंग से, मिस इंटरप्रिटेशन से आप चीजों को बिगाड़ देते हो. तो एक काम करते हैं, लेट्स रीड समथिंग. एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने है. आई विल पुट ऑल दीज थिंग्स इन प्रैक्टिस. हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके आइडियाज समझे, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करें उसकी, एंड देन ऑफ कोर्स वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. So this is a short paragraph in front of you, class. Everybody, all of you, kindly go through this. Please read this quickly. देख पा रहे हो आप स्क्रीन? Is this clearly visible to everybody? Okay. Done. Everyone, Shan, Shini, Mini, Arsh. All right. चलिए, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस पे. So, I will read it along and we will identify the important points. ठीक है? 3 kinds of study have been performed on Byron. 3 kinds of study have been performed on Byron. This is the keyword approach, जहां पे जो important words है हम उन पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं. ठीक है, इससे हमें जल्दी भी समझ में आता है और क्लैरिटी के साथ में भी समझ में आता है. देयर इज द बायोग्राफिकल स्टडी. तो 3 टाइप्स की स्टडी हुई है. बायरन एक बहुत ही फेमस राइटर रहा है और यहाँ पे वो कहते हैं कि पहली हो गई बायोग्राफिकल स्टडी. एंड बायोग्राफी वी ऑलरेडी नो इज अबाउट अ पर्सन्स लाइफ. व्हेन वी राइट डाउन अबाउट अ पर्सन्स लाइफ, उसकी जीवनी लिख रहे हैं. ठीक है, द वेरी वैल्यूएबल एग्जामिनेशन ऑफ बायरन साइकोलॉजी एंड द इवेंट्स इन हिज लाइफ. ठीक है, ओके. Escarpit's 1958 work is an example of this kind of study. तो एस्कैरपिट ने क्या किया था? साइकोलॉजी और मतलब उनकी बायोग्राफिकल स्टडी लिखी. ठीक है. And biographers to this day continue to speculate about Byron's life. Speculate is, when they're guessing about it and thinking about it. Okay? All right. सर ये कहता है आज तक उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी स्पेक्यूलेशन चल रहा है. Equally valuable is the study of Byron as a figure important in the history of ideas. ठीक है, अब एक और स्टडी हुई क्या कि बायरन ने कैसे हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में कंट्रीब्यूट किया है. Okay, because as a writer, yes, he was of course a philosopher in some sense, and he has been an instrumental figure in the history of ideas. तो उन्होंने जो भी आइडियाज एक्सप्रेस करे हैं उसके बारे में भी बात हुई है. Russell and Praz have written studies of this kind. Finally, there are studies that primarily consider Byron's poetry. तो अब पहला क्या हो गया? 3 टाइप की स्टडी है. पहला क्या हो गया? उनकी लाइफ के बारे में जो बायोग्राफिकल स्टडी थी. दूसरा क्या हो गया? उनका कंट्रीब्यूशन, राइट, और ही एज अ की पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज. ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल दिए. अब तीसरा क्या हो गया? उनकी पोएट्री के बारे में. सच लिटरेरी स्टडीज आर वैल्यूएबल. हाउएवर, अब ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बता रहा है. सो दिस सजेस्ट्स एन इन्फ्लेक्शन इन द आइडियाज, राइट. हाउएवर, ओनली व्हेन दे अवॉइड कंसंट्रेटिंग solely on analyzing the verbal shadings of Byron's poetry to the exclusion of any discussion of biographical considerations. ये भी important है. ये लिटरेरी स्टडीज भी वैल्यूएबल है, लेकिन ठीक है, अगर वो सिर्फ उसके वर्बल शेडिंग्स पे बात करेंगे उसकी पोएट्री के,
और एक्सक्लूड कर देंगे उसके बायोग्राफिकल कंसिडरेशंस को। अगर वो ऐसा करेंगे तो इट्स नॉट अ नाइस स्टडी। कहने का मतलब क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा उसको तोड़ तोड़ के सिंप्लीफाई करो और उसके मीनिंग को अच्छे से इंटरप्रेट करो। तो ये कह रहा है कि इफ यू वांट टू स्टडी बायरन प्रॉपरली तो आपको क्या करना होगा, उसके सिर्फ राइटिंग को, लैंग्वेज को, उसकी जो पोएम में उसने यूज किया है सिर्फ उसको नहीं देखना होगा। यू विल ऑल्सो हैव टू कंसिडर सम बायोग्राफिकल कंसिडरेशंस। यू रियली वांट टू अप्रिशिएट व्हाट ही हैज रिटन। कैसे? A study with such a concentration would be of questionable value because Byron's poetry, for the most part, is simply not a poetry of subtle verbal meanings. एनी स्टडी जो सिर्फ कंसंट्रेट करती है उनके राइटिंग स्टाइल और शब्दों को, और वो नहीं देखती है कि उन्होंने लाइफ में किस सिचुएशन में वो राइटिंग लिखी है, ऐसी स्टडी एक क्वेश्चनेबल स्टडी होगी। ठीक है, वो एक सही स्टडी नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, आगे पढ़ते हैं। रादर ऑन द होल बायरन्स पोएम्स record the emotional pressure of certain moments in his life. I believe we cannot often read a poem of Byron's, but can one of Shakespeare without wondering what events or circumstances in his life prompted him to write it. तो यही कह रहे हैं क्योंकि पोएम में उसने अपनी कई बार ये बोला है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ प्रेशर मोमेंट्स जो है वो रिवील करें। सो आप अगर उसकी पोएम समझना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट मेड हिम राइट दैट, किस इमोशनल स्टेट में उसने लिखा। और आप शेक्सपियर की पोएम आराम से, शेक्सपियर की कोई भी राइटिंग आप आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट नोइंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। ठीक है, बट बायरन को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ या सर्कमस्टेंस एट दैट पॉइंट ऑफ राइटिंग उसको नहीं जानेंगे। इज दिस क्लियर? सो क्या है इसका एक तरह से माइंड मैप, मतलब क्या क्या बातें हो रही? 3 काइंड्स ऑफ स्टडी। ठीक है, तीनों का एग्जाम्पल, स्पेशली 2 का एग्जाम्पल दिया गया। जो तीसरी स्टडी थी उस पे लेकिन बहुत ज्यादा बात करी उन्होंने। ये बोला कि उसकी वर्बल शेडिंग्स, उसकी पोएट्री पे बात करी, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन दे दिया कि भाई उसकी पर्सनल सर्कमस्टेंस पता होना चाहिए, वरना आपसे अच्छी स्टडी नहीं होगी। यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट हिज राइटिंग विदाउट नोइंग अबाउट हिज पर्सनल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस एट द पॉइंट ऑफ राइटिंग। इज दिस मच क्लियर? सो आई बिलीव विद दिस बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस लाइंड अप फॉर यू। लेट्स अटेम्प्ट दिस। चलिए ठीक है, फटाफट मुझे आंसर्स भेजिए आप। डन? क्वेश्चन 1, प्लीज शेयर योर आंसर्स। क्विक क्विक क्विक, इतना टाइम थोड़ी लगता है। नेक्स्ट। Class, are you with me? Please keep sharing your answers. See, I cannot pause indefinitely. I have to honor the time given to me and I have to do justice to it. I can't proceed at a snail's pace, but you will have to pace up. Okay, very nice, Sumit. Very good, Bhumika. Good job. Make sure you also write the question number ताकि clarity मुझे मिले. Second question. And finally, the third one. Keep answering, keep answering. Very good, Arshan Rohit.
All right, these are easy ones. Good job, good job. चलिए ठीक है. I believe we are through with all of them and it's time to discuss. Which one of the following statements best describes the organization of first para of the passage? अब देखो मैंने तुमको जो दिया हुआ है पूरे का ही आपको बताना है, ठीक है? इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन टाइप में आपको बस ये समझना है व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच. ऑल राइट, द अप्रोच हियर इज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि वो आपको 3 टाइप्स ऑफ स्टडी बता रहा है और फिर जो तीसरी स्टडी है उसमें थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन बता रहा है कि किस तरह से उसको करना चाहिए, तभी वो वैल्यूएबल होगी वरना वो वैल्यूएबल नहीं होगी. बट लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. यहाँ पे आपको कहीं पे बायरन नहीं दिख रहा. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. फिर इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक्सप्लिसिटली जो पैसेज की टर्म्स है वो नहीं नजर आ रहे हैं, है ना? So one will definitely be scrambling and wondering and racking their brains against walls की हो क्या रहा है. One by one देखिए क्लास, elimination is the key. जब भी मैं आपसे बोलती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो इंग्लिश में या सीआर में, you have to fall back upon the elimination strategy, not the selection strategy. यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि यार ये ऑप्शन है अच्छा लग गया हमको, तो this looks good to me. No, we don't have to do it intuitively. We have to be very logical. और न्यूट्रल माइंड से अगर आपको ए लग भी रहा है तो भी न्यूट्रल माइंड से हर एक ऑप्शन को आपको इवेलुएट करना है और कोशिश करना है कि वो एलिमिनेट हो जाए. फाइनली एक ऐसा ऑप्शन जरूर बचेगा जो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा एंड दैट इज द राइट आंसर. यानी कि आपको निच पिकिंग करनी है, ऑप्शंस में फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, आपको उनमें कमियां निकालनी है. दैट इज अ बेटर अप्रोच आई बिलीव बिकॉज यू नो दैट लीड्स टू वेरी हाई एक्यूरेसी. तो देखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक. A generalization is made and then gradually refuted. Refuted is, you know, disproved or challenged. But generalization किस टाइप का? कोई generalization आपको दिख रहा है यहाँ पे? मुझे तो नजर नहीं आ रहा. This is out because of this word. A number of theories are discussed and then the author chooses the most convincing one. Okay. ठीक है भाई. Number of theories क्या है? What theory is given? As such मुझे सिर्फ एक ही थियोरी दिख रही है कि बायरन पे 3 टाइप की स्टडीज हुई हैं एंड दे आर 1 2 3, दैट्स इट. ये सिर्फ पूरी एक ही थियोरी हम इसको कह सकते हैं. बट नंबर ऑफ थियोरीज मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही, ठीक है? और फिर फाइनली एक को चूज किया गया हो ऐसा भी नहीं हो रहा, तो ये भी आउट हो गया. Several categories are mentioned and then one category is discussed in some detail. Categories looks good. What categories are being mentioned here? बताइए. Categories of study on Byron, isn't it? 3 categories बताई गई हमको, 3 टाइप की स्टडीज बताई गई, बिल्कुल. And one category is discussed in some detail. Absolutely, यही तो हुआ. जो लास्ट कैटेगरी थी उसको फिर डिटेल में डिस्कस किया गया. So precisely this is what happened. Looks good. I put a small tick, but I will also be checking option D. A classification is made and then rival classification. भाई कोई rival वाइवल नहीं है यहाँ पर. बकवास ऑप्शन हटाओ इसको. आंसर क्लियर है ऑप्शन सी. ठीक है? So I think this is very evident. I hope you've understood this after the explanation at least. चलिए ठीक है. So your answer is option C. Wonderful. Now we move to the next one. Which one of the following would the author most likely consider to be a valuable study of Byron? बताइए. Okay. वैल्यूएबल स्टडी ऑफ बायरन उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? उसने बोला था कि अगर आप उसकी
पोएट्री की स्टडी करें तो सिर्फ वर्बल शेडिंग्स की बात ना करें, सिर्फ उसके राइटिंग स्टाइल या लैंग्वेज की बात ना करें, बल्कि ये भी देखें कि बैकग्राउंड क्या था, बायोग्राफिकल सिनेरियो या सिचुएशंस क्या थी, है ना? दैट्स व्हाट ही मेंशन्ड. सो लेट्स हंट फॉर दैट. A study that compared Byron's poetic style with Keats, absolutely out of scope, nowhere given in the passage. This is out. A study that argued that Byron's thought ought not to be analyzed in terms of its importance in the history of ideas. यानी कि एक स्टडी जो बोलती है कि बायरन का जो थॉट है उसको आपको एनालाइज नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ आइडिया. ऐसा कुछ नहीं बोला है यार, बल्कि एक ऐसी तो फुल फ्लेजेड एक टाइप ऑफ स्टडी है. So this is weird. This is certainly not given in the passage. This is wrong. Right? Very good, Bhumika. A study that sought to identify the emotions felt by Byron at a particular time in his life. Looks wonderful. That's what it is saying. What was the motive? Okay, he's written such a sad poem. So what actually went wrong? उसका क्या emotional pressure उसने experience किया? यही तो बात हो रही है. See, looks good to me. A study in which a literary critic drew on experiences from his or her own life. Again, nowhere given. This is also out of scope. Clear answer है हमारा option C. ठीक है ना? All right, wonderful. And finally, इस passage का आखिरी question. According to the author, Shakespeare's poems differ from Byron's in that Shakespeare's poems, क्या फर्क बताया गया है? यही बताया गया था कि शेक्सपियर को आप वैसे भी पढ़ सकते हो उनके बैकग्राउंड को जाने बिना, ठीक है, लेकिन बायरन की पोएट्री को अप्रिशिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए उस वक्त क्या सर्कमस्टेंस थी, क्या इमोशनल प्रेशर था. सो वेयर वी कैन फाइंड दिस से, क्योंकि हमने पैसेज को इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, तो हमको ऑलरेडी आंसर पता है. अब हमको वो आइडिया पता है, वी जस्ट हैव टू लुक फॉर दैट पर्टिकुलर आइडिया इन द गिवन ऑप्शंस. सो लाइफ बिकम्स इजी व्हेन यू रीड इट वेल. Shakespeare's poems have elicited a wider variety of responses. ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि इनको ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, उनको कम मिला. शेक्सपियर की पोएम कैसे डिफर करती है? इन दैट शेक्सपियर्स पोएम्स, तो अब जो भी बात है ना वो शेक्सपियर की पोएम के लिए सही होना चाहिए. डू नॉट ग्रो आउट ऑफ और आर नॉट मोटिवेटेड बाय एक्चुअल इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस इन द पोएट्स लाइफ. इस ऑप्शन के बारे में आपको क्या लगता है? ऑप्शन बी. नाउ दिस इज अ स्लाइटली ट्रिकी थिंग एंड इट्स अ डिस्टॉर्टेड आइडिया, क्योंकि आपको पता है कि पैसेज ये कहीं पे भी नहीं बोल रहा है यू नो कि शेक्सपियर की पोएम्स या उनकी राइटिंग मोटिवेटेड ही नहीं है थ्रू सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस और सिचुएशंस, ये नहीं बोल रहा है. बट वो ये कह रहा है शेक्सपियर लिखते ऐसा है कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट, you'll like it, you'll understand it, you'll appreciate it. But Byron ऐसा नहीं लिखते. ये बात बहुत अच्छे से I believe D बोल रहा है. Can often be read without the readers being curious about what biographical factors motivated the poet to write them. Looks good. I put a small tick. C भी देख लेते हैं. Provide the attentive reader with a greater degree of illumination concerning his or her own weaknesses. ये कोई बातें नहीं हुई है, बिल्कुल बेसलेस है. क्लियरली डी डेल्टा इज द राइट आंसर. सो भूमिका, आर यू ट्राइंग टू से कि ऑप्शन बी के बारे में बोल रहे हो कि बी हो सकता था आंसर? बी वाज अ क्लोज चॉइस, बट देन यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि पैसेज जितना बोल रहा है हमको उतना समझना है. हम थोड़ी बहुत इन्फ्रेंसिंग करते हैं, but that has to be very logical, supported by evidence given in the passage. ठीक है ना? We're not really free to be assuming things or to be misinterpreting them. Is that much clear? क्या बात है, very nice. Now class, I've got to tell you one very interesting thing, that I had planned one more passage for you, but because of paucity of time, we will not be able to do that. All right? बट जो मैं की डिलीवरेबल्स आज आपको बताना चाह रही थी वो हो गया था. सो बिफोर आई कॉल इट अ डे,
I believe we can actually wrap it up and recapitulate. ठीक है ना? सही रहेगा ना? So I think I can give you a quick recap कि पैसेज रीडिंग के जो तरीके हैं जो मैंने आपको बताए थे, एक बार उनको समझें. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. पहली बात है, गेटिंग स्टार्टेड यू हैव टू रीड. रीडिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट. रीडिंग के बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ नाइस बेस एंड कमांड ओवर योर लैंग्वेज. ऑलराइट, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा. सेंट्रल आइडिया यू हैव टू आइडेंटिफाई, राइट? यू हैव टू बी एबल टू डिस्टिल ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर एंड देयर. उससे आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन समझ आएगा और बढ़िया सी माइंड मैपिंग हो जाएगी. एंड देन यू विल नॉट हैव टू गो बैक टू द पैसेज ओवर एंड ओवर, क्योंकि काफी चीजें तो आपको वैसे ही समझ में आ गई है. ठीक? ऑलराइट. एंड सेकेंडली, यस, ऑथर का व्यू पॉइंट समझना होगा. एंड ओवर थिंकिंग नहीं करना है. ओवर थिंकिंग में बच्चे अपने आंसर्स भी बदल देते हैं, इतने सेल्फ डाउट में आ जाते हैं. ठीक है ना? सो दैट इज समथिंग दैट इज जस्ट नॉट एडवाइज्ड. So I hope that I have, through a very, very short passage and one practice, I've demonstrated what should be your strategy. And that's all for today, I guess. Thank you so much.